In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to have a reading and translation of lesson number 13, book 2, God Be Praised, written by Ahmed Nadeem Kasmi. God Be Praised means Tarif Allah ke liye. Ahmed Nadeem Kasmi wrote this story in Urdu with the title Alhamdulillah, which has been translated into English. Ahmed Nadeem Kasmi was born on 20th November 1916. He was an Urdu language Pakistani poet, journalist, literary critic, dramatist, and short story author. In this story, the writer has highlighted the ups and downs of a Maulvi's life. He was poor fellow. His income was not enough for his family needs. He was worried about his daughter's marriage. Nobody was willing to accept his daughters in marriage due to his poverty in village. The curse of dowry was another problem for him. Now we start reading the text along with synonyms, Urdu meanings, and translation of the sentences properly. Before his marriage, Maulvi Abul Barkat, alias Abul, used to live in comfort, even pomp. Alias Abul Al Maroof. Al Maroof mean जिस नाम से कोई जाना जाता हो, known as, assumed name, pen name कह लें. Used to live in comfort. Comfort, ease, relief, सुकून. Even pomp. Pomp, शान शौकत. इसका बामुहावरा तर्जमा होगा, शादी से पहले मौलवी अबुल बरक़ात अल मारूफ, मौलवी अबुल यानी वो मौलवी अबुल के नाम से मशहूर थे, बहुत पुरसकून बल्कि ठाट बाट की ज़िंदगी बसर करते थे. Used to. Students, if we see grammatically, we can use used to talk about a past habit or state. मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं he used to live in Sahiwal, mean he doesn't now living. या जैसे हम कहें कि he used to go on holiday to Murray every year. यानी we can use used to talk about a past habit or state. On his head, he wore a light brown turban known as मशहदी लुंगी. अपने सर पर वो हल्के भूरे रंग की पगड़ी जिसे मशहदी लुंगी कहते थे पहनते थे. Because it originally came from मशहद in Iran. क्योंकि बुनियादी तौर पर इस लुंगी का ताल्लुक़ ईरान के शहर मशहद से था. ओरिजिनली, बेसिकली, इनिशियली, बुनियादी तौर पर, केम फ्रॉम उसका ताल्लुक़ था, इट बिलोंग टू. द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन. गिल्डेड, गोल्डन, सुनहरी. टिप ऑफ द कैप, पगड़ी का किनारा. उनकी टोपी का आरास्ता किनारा पगड़ी से ऊपर चमका करता था. He always carried a walking stick. उनके पास हमेशा एक चलने वाली छड़ी होती थी. A sort of scepter, जो एक किस्म का असा था. असा ऐन स्वाद अलिफ सा. असा. It means a royal stick with decorative bands of brass and gilt. Decorative, good looking, beautifying, adorning, ज़िबाइशी. बैंड्स, स्टड, कॉर्ड्स, जिसको हम नगीने भी कहते हैं, कोके भी कह लेते हैं. ब्रास, नेम ऑफ अ मेटल, यूजली कॉल्ड पीतल. इस सेंटेंस की फुल ट्रांसलेशन होगी कि इनके पास हमेशा एक चलने वाली छड़ी होती थी जो एक किस्म का असा था जिस पर पीतल और गिल्ट से सजी हुई पट्टियाँ या कोके लगे हुए होते थे. For his hair, he used fragrant oil. Fragrant, sweet smelling, खुशबूदार, scented. Oil, तेल. It's a sweet, pungent smell. Pungent means sharp, strong, तेज़ किस्म की.
स्मेल खुशबू, लिंगर्ड स्प्रेड, persisted, continued, फैल जाती, महक जाती, इन द विलेज, लेन्स गलियाँ, स्ट्रीट, पाथ्स, whenever he walked through them. अपने बालों के लिए वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे जिसकी खुशबू गांव की गलियों में फैली रहती थी जब कभी वो उनसे गुजरते थे. Students, after reading this paragraph, you can answer the question that what type of life did Maulvi Abul live before his marriage? Maulvi Abul had slightly bulging eyes. Slightly, a bit, little, मामूली सी, थोड़ी सी. Bulging, projected, थोड़ी उभरी हुई. मौलवी अबुल की आंखें कुछ उभरी हुई थीं. On his fingers, he wore silver rings with large turquoise stone. Turquoise, it's a bluish green. ये ना एक नगीना है बेटे. लोग इसे सिल्वर में अपनी उंगलियों में पहनते हैं. And there is a conception or misconception about wearing this stone that it is excellent to wear it for depression or exhaustion. And it also has the power to prevent panic attacks, and it also promotes self realization and assists creative problem solving. तो मौलवी साहब के बारे में राइटर कहते हैं कि हाथों की उंगलियों में वो बड़े बड़े नगीनों वाली चांदी की अंगूठियाँ पहनते थे. These rings came off his fingers. Came off, उतारते वो यानी उतरती. For his finger 5 times a day before ablution वज़ू से पहले. And yet no change was ever noticed in the order in which they were worn. यानी इसे दोबारा से हम देखेंगे कि हाथों की उंगलियों में वो बड़े बड़े नगीनों वाली चांदी की अंगूठियाँ पहनते थे जो वज़ू से पहले 5 मरतबा उतरती थीं, मगर उनके पहनने की तरतीब में कभी कोई फ़र्क ना देखा गया. Now you can answer the question, describe Maulvi's rings or describe Maulvi's appearance. Every Eid, after his sermon address, khutbah, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from the devotees, followers, पैरोकार, परस्तार, अकीदतमंद, to fall with a thud, गिरने की आवाज़, crash, bang. He distributed, divide, give out 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers. Worshippers, इबादत करने वाले, अकीदतमंद, followers. Among the needy, poor, deprived, ज़रूरतमंद, and the poor of the village. हर ईद को उनकी तकरीर के बाद जब कभी सूती थैला जिसमें 150 से 200 रुपए होते थे जो वो परस्तारों से जमा होते थे, ज़ोरदार आवाज़ से इत्तफाकन अगर गिर जाता तो वो इबादत गुजारों की मौजूदगी में 40 से 50 रुपए गाँव के ज़रूरतमंदों और गरीबों में तकसीम कर देते थे. After each such act, he used to say, ऐसे हर अमल के बाद वो कहा करते थे, Please do not pray for me. मेहरबानी से मेरे लिए दुआ ना करें. Remember the benevolent Almighty Allah. Benevolent, मेहरबान, मददगार. Almighty, कादर मुतलिक, all powered और all powerful. मेहरबान और ताकतवर अल्लाह को याद करो. If he creates insects in stones, he supplies their food there too. अगर वो पत्थर में कीड़ा पैदा करता है तो वहीं उसे खुराक भी पहुंचाता है. Please do not bless me. मुझे दुआएं ना दो. What has he not blessed me with? उसने मुझे क्या नहीं दिया? Health, सेहत, peace of mind, ज़हनी सुकून, freedom from care, बेफिक्री. I have everything one can desire. मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है.
I do not need anything more from his unlimited treasure of divine blessing, treasure, wealth, divine, godly, godlike, heavenly, खुदाई मुकद्दस ब्लेसिंग रहमतें फेवर्स बेनिफिट्स मुझे उसकी रहमतों के लामहदूद ख़जाने से और कुछ नहीं चाहिए। बेटे ये तो कहानी के डायलॉग्स हैं, लेकिन आप लोगों ने अल्लाह से ज़रूर मांगना है, क्योंकि अल्लाह से मांगना एक मुसलमान की शान है और हर वक्त मांगना और खुदा का अता कर देना उसकी शान है। Now you can answer the question given in the exercise. Describe Maulvi's appearance. How much did the Maulvi collect on every Eid, and how much was distributed among the needy and the poor? MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा कि कितने पैसे जमा होते थे और कितने वो आगे तकसीम करता था। Like the children who came in quick succession sequence series ऊपर तले, the times too had changed fast. उन बच्चों की तरह जो तेज़ी से यके बाद दीगरे आए, वक्त भी तेज़ी से बदल गया था। A pair of shoes for his first born मेहरुनिसा उनकी पहली बेटी का नाम, had cost 1 rupee. उनकी पहली बच्ची मेहरुनिसा के जूतों पर 1 रुपया खर्च हुआ था। For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. उनकी सबसे छोटी बेटी के लिए एक जोड़े के लिए उनसे 6 रुपए अदा करने को कहा गया। When he complained होता है शिकायत करना। The shoemaker said, Maulvi ji, I did not charge more for your sake. Charge, receive, get, लेना, वसूल करना। जब उन्होंने शिकायत की तो जूते साज ने कहा, मौलवी जी मैं तो आपकी खातर ज़्यादा वसूल नहीं कर रहा। Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. Wangle, हथिया लेना, obtained by trickery. कोई और होता तो बड़ी आसानी से मैं 10 रुपए हथिया लेता। The cost of leather has gone sky high. चमड़े की कीमत आसमान तक बुलंद हो गई है। Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Caucasus. Suddenly, अचानक, abruptly, as if, जैसा कि, dispatched, sent, forwarded. Caucasus, Kokaf, it's a mountain range in southwest Russia, running along the north borders of Georgia and Azerbaijan between the Black Sea and Caspian Sea. In Urdu हम कहते हैं कोकाफ, यानी बहुत दूर। कीमतें इतनी अचानक बढ़ी हैं कि यूँ लगता है जैसे मुल्क की तमाम गायें और भैंसें कोकाफ की चोटी पर भेज दी गई हैं। माई कॉस्ट प्राइस इज़ 5.12. मेरी लागत 5 रुपये 12 आने हैं। बिलीव मी माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनाज. मुझ पर यकीन करें मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आना है या 4 आने हैं, क्योंकि प्लूरल है ना ये। आना एक छोटी करेंसी हुआ करती थी आपकी पैदाइश से बहुत पहले, अब ख़त्म हो गई, अब तो बड़े बड़े पैसे शुरू हो गए हैं। आपकी अपने 1 रुपये की बहुत छोटी करेंसी हुआ करती थी। Come on, Maulviji, don't look disappointed and pray. Don't give me even that 4 आनाज bit. Disappointed, dejected, displeased, मायूस और परेशान। मौलवी जी मायूस ना हों और दुआ करें, ख्वाह मुझे वो 4 आने भी आप बिल्कुल ना दें। I will charge only what I have spent for these dainty shoes. Dainty, टेंडर, डेलिकेट, प्रिटी, नर्मो नाज़िक। मैं इतनी ही कीमत वसूल करूँगा जितनी आपके नफीस जूतों पर मैंने खर्च की है। इफ़ आई एम लाइंग, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी एंड मे आई बी ड्रॉन इन सम पॉन्ड।
May I even be deprived of a decent burial. कर्ज लानत बदुआ deprived महरूम होना, decent उम्दा, and burial तदफीन यानी जनाजे को दफन करना। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर खुदा की लानत हो और मैं किसी तालाब में डूब जाऊं और मैं एक उम्दा तजहीज़ो तकफीन से भी महरूम रहूं। If it was possible to get the necessities of life, necessities, requirements, needs, ज़रूरियात of life from the heavens, heavens आसमान से, अर्श से, paradise, through prayer, Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda. Umda was the name of Maulvi's the youngest daughter in the family. अगर दुआओं के बदले में आसमान से ज़रूरियात ज़िंदगी का हसूल मुमकिन होता तो मौलवी अबुल अपनी सबसे छोटी बच्ची उम्दा के लिए अल्लाह ताला से जूते मांगते। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड सीक एडवाइस, मशवरा करना। रात को उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा किया, बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग she silently lifted a corner of the quilt to expose Umdatun Nisa's small bare feet. Instead of की बजाय साइलेंटली खामोशी से, एक्सपोज दिखाना, बेयर एक्सपोज्ड नंगे। लेकिन उसने कोई जवाब देने की बजाय खामोशी से लिहाफ का एक कोना उठाकर मौलवी अबुल को उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पाँव दिखा दिए। Seeing these dainty feet, Maulvi Abul burst into tears like a child. इन नर्मो नाजुक पाँव को देखकर मौलवी अबुल बच्चों की तरह एकदम रो दिए। बेटा, from this paragraph you can answer the question. What was the name of his youngest daughter? Next day, after his morning prayers, अगले रोज़ फजर की नमाज के बाद he went to the shoemaker and paid him 5 rupees. वो मोची के पास गए और उसे 5 रुपए और 12 आनाज और 12 आने अदा कर दिए। and bought the shoe, और जूते ख़रीद लिए। इसका बामुहावरा हम तर्जुमा करेंगे कि अगले रोज़ फजर की नमाज के बाद वो मोची के पास गए और उसे 6.25 रुपये अदा करके जूते ख़रीद लिए। 5 रुपये 12 आने 6.25 रुपये बनते हैं, क्योंकि 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। लीविंग हिज शॉप, दुकान को छोड़ते हुए ही वाउड विद अल्लाह एज हिज विटनेस, वाउड तौबा करना, कसम उठाना, विटनेस गवाह के तौर पे, अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने कसम खाई। नेवर टू यूज़ द पाउडर्ड टोबैको दैट ही लव्ड। मूची की दुकान से उठकर जब वो गली में आए तो उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपनी पसंदीदा चीज़ पाउडर्ड टोबैको नस्वार से तौबा कर ली। When Mehran reached the age of 14, Maulvi Abul's prayer became intense and prolonged. Intense पुरसोज, prolonged ज़्यादा लंबी हो गई। लेकिन जब महरन की उम्र 14 बरस की हो गई तो मौलवी अबुल की नमाज़ें पुरसोज और ज़्यादा लंबी हो गईं। During Ramadan, he led the nightly तरावी prayers as usual. रमज़ानुल मुबारक में तरावी पढ़ाने की सादत हस्बे मामूल उनके हाथ आई। But the same मौलवी अबुल who never made a single mistake, लेकिन वही मौलवी अबुल जिन्होंने कभी गलती नहीं की थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another. अब कुरान पाक की एक सूरत से हटकर दूसरी सूरत में जा निकलते। Sometimes unconsciously, he repeated the same chapter twice in the same part of a prayer. Unconsciously, लाशऊरी तौर पे, repeated नहीं, recited again and again, दोहराना दोबारा से। बाज़-औक़ात तो बेख्याली में वो एक ही सूरा को एक ही रकात में 2 बार पढ़ डालते। Once, when Chaudhry Fatedad, member of the district board, reprimanded him for a mistake, Maulvi Abul felt like shouting back at him. Reprimand, सरजनिश करना, admonish, rebuke. एक दफ़ा जब चौधरी फतेदाद मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने गलती पर उन्हें सरजनिश की तो एक बार तो मौलवी अबुल के जी में आई
कि वो पुकार उठें। यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज़ चौधरी साहब। रो क्यू लाइन कतार। चौधरी साहब आपके यहाँ तो लड़कों की एक पूरी कतार है ना। Had you also been blessed with a daughter, then you would understand why I repeated a chapter of the Holy Book twice. आपके भी कोई बेटी होती तो आपको भी समझ आ जाती कि मैंने कुरान पाक की एक ही सूरा को 2 दफ़ा क्यों पढ़ा. Students, you can answer the questions after reading and translation of this paragraph. That what was the name of the eldest daughter of Maulvi, and what was the name of the member of the district board where the Maulvi lived. But Chaudhry Fateh's censure was purely religious. Censure is Sarzanish. Purely Khalistan, entirely, absolutely, religious, divine, spiritual. लेकिन चौधरी फतेहदाद की ये सरजनिश खालिस्तन मजहबी नवैयत की थी. Why he was the same rich, pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahab home-baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. होम बेक्ड घर की पकी हुई, स्मीयर्ड चुपड़ी हुई, एंड अर्थन मिट्टी का बना हुआ. क्योंकि ये चौधरी ही तो था जो गांव का एक अमीर आदमी, एक अच्छा मुसलमान और गांव का सरबराह होने के नाते बरसों से मौलवी अबुल के घर में हर शाम को घर की पकी हुई घी में चुपड़ी हुई रोटी और दाल का एक प्याला भेजता चला आ रहा था. ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग. ऑफरिंग उर्दू में हम कहेंगे नजराना, यानी किसी को मोहब्बत के तौर पे कोई गिफ्ट दिया जाए, डोनेशन, चैरिटी टाइप, अल्लाह के नाम पे, और वो ये नजराना बड़ी बाकायदगी से भिजवाया करता था. इफ़ फॉर सम रीज़न द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मील वॉज डिलेड गॉट लेट, ताख़ीर हो जाती, देर हो जाती. चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ, वो अपने बजाते खुद लेकर आता, बनफ्से नफीस जिसको आप उर्दू में कहते हैं, टू मौलवी अबुल्स हाउस एंड अपोलोजाइज, इसकी माजरत भी करता, एक्सक्यूज़ चाहता, फॉर द डिले, सेइंग, अगर किसी वजह से किसी रोज़ शाम का नजराना भिजवाने में कभी देर हो जाती तो चौधरी फतेहदाद बजाते खुद या बनफ्से नफीस खुद उसे उठाकर मौलवी अबुल के घर पहुंच जाता और ताख़ीर की मौलवी अबुल से ये कहते हुए माफ़ी मांगता, आई एम टेरिबली सॉरी मौलवी जी. टेरिबली यहाँ पे कोई डर खौफ के लिए नहीं है, ये एक्सट्रीमली के लिए, यानी बहुत ज़्यादा, इस पे ज़ोर दे के बात की गई है, बहुत ज़्यादा. क्या कहता है कि मौलवी जी मुझे बेहद अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है. माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है या मेरी बीवी बीमार है. सो द मेड, ये जो फीमेल सर्वेंट होती है, हैज़ कुक्ड द फूड, घर की नौकरानी ने खाना तैयार किया है. ही सिंसियरली कंसिडर्ड द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप. चौधरी सच्चे दिल से मौलवी जी का रोज़ का नजराना अपनी रोज़ की इबादत का हिस्सा समझता था. Conscious of the ever-increasing responsibilities of her husband, Zebun-Nisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. अपने खामद की मुसलसल बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए ज़ेबुन-निसा ने गाँव की नौजवान लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था. ज़ेबुन-निसा मौलवी साहब की बीवी का नाम है. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, Zebun-Nisa would arrange for at least 2 baskets. जुमेरात को जब हर लड़की रोटी पर थोड़ी थोड़ी शक्कर रख कर लाती तो ज़ेबुन-निसा कम से कम 2 अलहदा चंगेरों का इंतज़ाम कर लेती. चंगेरें कहते हैं टोकरियों को जिसमें रख के रोटी खाई जाती है. These small baskets were used to store morsels of home-baked bread. Morsels कहते हैं बाइट्स को, पीसेस को, लुक में, यानी बची खुची रोटियाँ. ये चंगेरें या ये टोकरियाँ घर की पकी हुई रोटी के टुकड़ों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होती थीं. But there was yet another problem. लेकिन अभी एक और मसला भी था. Besides bread to fill their bellies, they also needed clothes
to cover their bodies. बेटा beside दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक होता है beside और एक होता है besides. beside मीन करीब, पास ही, पहलू में, और जो besides होता है इसका मतलब होता है मज़ीद बिरा. यहाँ पे सेकंड काइंड ऑफ बिसाइड्स जो है ना वो डिस्कस हुआ है. मतलब लेकिन इसके अलावा एक और मसला भी था कि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी के अलावा तन ढांपने के लिए कपड़े भी चाहिए था. चौधरी फतेदाद यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लोथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट. चौधरी फतेदाद हर नई फसल पर मौलवी अबुल को एक पोशाक भी पेश करता था. पोशाक का मतलब ये कि कपड़ों के जोड़े या कपड़ा. Whenever these clothes came, a tailoring shop would spring up in Maulvi Abul's house. लेकिन जब भी ये कपड़ा घर आता और उसी वक्त दर्जी की दुकान घर में सज जाती. इसका मतलब ये नहीं कि दर्जी आके बैठ जाता, वो खुद से ही कपड़े सीने लग जाती उनकी माँ जो थी. Zebun Nisa, with the assistance of Mehran and Zabda and Shamsan, would cut them into smaller outfits for the younger kids. ज़ेबुन निसा मेहरन, ज़ब्दा और शमसन की मदद के साथ, ये उसकी बच्चियों के नाम हैं, उन्हें छोटे बच्चों के लिए कपड़ों में काट लेती थी. If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked up in a tin box. एक्स्ट्रा, एडिशनल, ज़ायद, ज़रूरत से ज़्यादा. बोनस का भी यही मतलब है, एक्स्ट्रा, ज़रूरत से ज़्यादा यानी ज़्यादा पैसे. यूजुअली, ऑफनली, अमूमन, नॉर्मली. अगर कभी उन्हें कोई ज़ायद रकम मिल जाती तो वो इस ज़ायद रकम को अमूमन टीन के एक डिब्बे में बंद कर देते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम द एपिटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड. एपिटाइट्स, भूख, हंगर, स्टारवेशन. वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख भी बढ़ती गई. मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ. भंवर उर्दू में हम कहेंगे, वैसे प्रॉब्लम्स और अफेयर्स इंग्लिश में इसके सिनोनिम बनते हैं. मौलवी अबुल ज़िंदगी के भंवर में फंस गए थे. टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम. वक्त अब उन पर मेहरबान नहीं रहा था. द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स had become silvery white. उनकी कनपटियों के बाल तो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. दांतों पर मसूड़ों की गिरफ्त बहुत अरसे से ढीली पड़ गई थी. But his voice remained resonant. Resonant, गर्जदार, resounding, शानदार किस्म की. However, sometimes that too quivered. कांप जाना, trembled, कांप जाती थी, shivering हो जाती थी. In these lines, you come to know about the names of Maulvi's other daughters and about the kind behavior of Chaudhry Fatedad. Chaudhry Fatedad was the only one who knew the reason. चौधरी फतेदाद ही एक ऐसा शख्स था जिसे इस बात का सबब भी पता था, यानी उसे इस बात की रीज़न का पता था, वजह का पता था. Maulvi Abul had once opened his heart to him about a suitable match for Mehran. Suitable match mean a reasonable partner or couple. मौलवी अबुल ने इससे मेहरन के लिए किसी मुनासिब रिश्ते के लिए अपने दिल की बात की थी. The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. Eligibility, अहलियत, suitability, फिटनेस. चौधरी साहब ने बड़ी संजीदगी से इस मकसद के लिए गांव के तमाम लड़कों पर नज़रें दौड़ाई थीं. देयर वर सम whom ही फाउंड सूटेबल. उनमें से कई नौजवान ऐसे भी थे जो उसे बेहतर लगे थे या उसकी नज़रों में जचे थे. बट द ट्रबल वॉज दैट एवरी वन इन द कम्यूनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल. लेकिन मुश्किल ये थी कि गांव के सब लोग मौलवी अबुल को जानते थे. चौधरी फतेदाद ट्राई टू निगोशिएट टू डिस्कस, बातचीत करना, with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. दो चार बुज़ुर्गों से चौधरी साहब ने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब कुछ यूं पीछे हटे जैसे फूलों की क्यारी में से अचानक शहद की मक्खियाँ निकल आई हों.
Ultimately, Maulvi Abul's and Zebun Nisa's prayers bore fruit. Ultimately, eventually, बिलाखिर आखिरकार bore fruit रंग ले आई proved fruitful. बिलाखिर मौलवी अबुल और ज़ेबुन निसा की दुआएं रंग ले आईं. A young man from the village who had gone away. गांव का एक नौजवान लड़का जो गांव छोड़कर चला गया था came back वापस आया and opened a small cloth shop. और उसने कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली. He called himself शमीम अहमद. वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाने लगा. यानी हो सकता है उसका नाम शमीम अहमद ना हो, आगे पैराग्राफ में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे. ही वॉज द ओनली सन ऑफ अ हाफिज़. वो एक हाफिज़ कुरान का इकलौता बेटा था. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद. खुदा यार, यस, उसका असल नाम बच्चे का खुदा यार था और वो अपने आप को फिर शमीम अहमद कहलवाने लगा. खुदा यार हैड ट्राइड टू फॉलो इन हिज फादर्स फुट स्टेप. वालिद के मरने के बाद खुदा यार, जो अब जिसका नाम शमीम अहमद था, उसने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश शुरू कर दी. When he was about 16, जब वो 16 साल का तकरीबन हुआ, he went away to the city, leaving his old mother behind. वो अपनी बूढ़ी माँ को गांव में ही छोड़कर शहर चला गया. Later they learned that he had worked in the house of a head clerk. बाद में मालूम हुआ कि वो किसी हेड क्लर्क के यहाँ मुलाजिम हो गया है. After which he had managed to open a small shop on a footpath. उसके बाद उसने फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोल ली. Where he began selling cut pieces. जहाँ उसने कट पीस बेचने शुरू कर दिए, यानी बड़े कपड़ों से बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों की दुकान डाल ली. After saving some money, कुछ पैसे बचाने के बाद, and gaining experience in the business, he returned to the village. He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. Inaugurate, ओपन करना, इनिशिएट करना, इफ्तिताह करना. वैसे उर्दू में हम कहते हैं इफ्तिताह करना. कुछ बचत करके और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद वो गांव वापस आ गया. तब उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो दुकान का इफ्तिताह करें और उसके पहले गाहक बने ताकि दुकान में बरकत हो. Here we end the lesson, बेटा. Read the chapter again along with the translation and learn answers of the questions. Thank you. Allah Hafiz.